Welcome everyone. I welcome all of you to the class of Modern Indian History. आज हम अपनी क्लास में टाइम लाइन देखेंगे पूरी हिस्ट्री की. उस टाइम लाइन के माध्यम से विल बी नोटिसिंग व्हाट वर द चेंजेस एंड हाउ डिड द whole history panned out. So the basic approach will be starting from the cut-off date of modern Indian history, that is 1757. Now 1757 marks a very important watershed moment in Indian history, which being Battle of Plassey. Battle of Plassey. So we'll start from here. So before we move ahead, there are some things which we need to remember. हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए. क्या पहले हुआ, क्या उसके बाद आया, क्योंकि ये कोज इफेक्ट ही आपको क्वेश्चंस जो कंसेप्चुअली आते हैं उनको सॉल्व करने में मदद करेगा. सेकेंडली, जब हम बार बार पढ़ेंगे इसी चीज़ों को, इवेंट्स को, हमें दिमाग में ऐसे इनको डालना है, ऐसे रिक्रिएट करना है, ताकि कोई अगर फ्रिंज टॉपिक्स पे कोई क्वेश्चन आते हैं, more or less we can relate to those things and we can answer those questions. So I'll be starting with 1757. So Battle of Plassey was the first battle which was fought between the forces of Robert Clive and Siraj-ud-Dowla, and it emerged important because till now the company was more or less focused on trade activities. By this particular war they could enter as administrator or rulers. So in 1757 Robert Clive defeated Siraj-ud-Dowla. Now he was the king of Bengal, or we can say Nawab of Bengal. So king of Bengal, and as we know, or we should know, Siraj-ud-Dowla was defeated because of some conspiracy by some of his nobles such as Jagat Seth and his own military commander. So what happened was, when he was going out to fight, these deputies didn't even appear for the battle, so which led to defeat of Siraj-ud-Dowla, and they didn't appear for the war was because Clive bribed them beforehand. After 1757, the next important event in our history is 1761, which is Third Battle of Panipat. As we might have seen in ancient and medieval classes, this was the third Battle of Panipat, and earlier two were, number one was in 1526, which was between Babur and Lodi. Second was in 1556, which was between Akbar and Hemu. And third is in 1761 between Marathas and Ahmad Shah Abdali. Now why this is important is, just a second, Ahmad Shah Abdali. Yes. Now why this is important is, by 1757 or even by 1707 when Aurangzeb died, more or less the power of Mughals had been very lowered. So these later Mughals were not that capable, and during this time one important power that was emerging in India was Marathas. So when in 1761 Marathas met with Ahmad Shah Abdali, so what it meant was they were reduced, their power was considerably reduced, which paved way for British to solidify. अगर उस समय मराठास ने अपना जो पूरा जमखम से लड़ाई की, उसमें उनकी काफ़ी फोर्सेस ख़राब हो गई थी. सो इससे 1761 व्हाट इट डज इज कि ना ये मराठास के लिए फ़ायदेमंद था, ना अब्दाली के लिए फ़ायदेमंद था. इट वाज ओनली बेनिफिशियल फॉर द ब्रिटिश, सिंस मराठास विच वर ऑन द ascendancy after the death of Aurangzeb now were drastically reduced in their power after this war. Next important event is 1764, that is Battle of Buxar. Now what happens during Battle of Buxar is, after Battle of Plassey there was some arrangement. ब्रिटिश अपना पपेट रूलर वहाँ लगा देती है अब गवर्नरशिप के लिए, मगर थोड़े समय बाद वो पपेट रूलर भी ही स्टार्ट्स रेबेलिंग. सो इन ऑर्डर टू क्वेंच या टू सप्रेस दैट particular rebel ruler, there was Battle of Buxar. In this battle, company defeats Mir Qasim plus Shuja-ud-Dowla and Shah Alam II. He was
This we have learnt in medieval history classes too. Shah Alam II was then Mughal emperor. Mughal emperor. So if I'll show you, so just a second, so this is when we see later Mughals. Just a second. See, these are the later Mughals. So I said this is Muhammad Shah Rangila. During his time, one of the main event was Nadir Shah's invasion. And who is Nadir Shah? Nadir Shah was the one who took away the peacock throne and along with it the Kohinoor diamond to Persia. After it was Ahmad Shah Abdali who came in 1761, and during the time Shah Alam was the emperor. Shah Alam, so in 1764 he alongside with Mir Qasim and Shuja Dola waged war against the British East India Company, in which they were defeated. So what happened after this was a Treaty of Allahabad was signed, and more or less the Mughal emperor was reduced as a pensioner to the British Empire, and they gained more Diwani rights. Diwani rights is nothing but revenue collecting rights over the region, that is in Bengal Bihar region. So coming back to our today's class, so Battle of Buxar, what it did was, it was a battle between the Bengal Nawab, that was Mir Qasim, who was supported by Shuja Dola, and Shah Alam II, who was the British emperor, Mughal emperor at that time. And what it did was, it led to Treaty of Allahabad, and Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha were given to company. Diwani right is more or less revenue rights. So they had the power to collect the revenue. So what it did was, it solidified their position even further. We need to understand revenue. Whenever you get more revenue, you get more and more money for other activities. And now these activities were war activities. So more the revenue they got, more activities, that is more war specific activities they could engage themselves, and more areas they could cover. This is British. And one more thing is, so around 1740s, British and India were in a war with French forces. तो आपस में दोनों का competition था कि who will capture more and more territories. So due to this, in 1740s there were many Anglo-Carnatic wars. So during this time, British emperor to help the East India Companies sent some crown troops. So among these crown troops, one of the important people was Robert Clive. Now Clive उन आदमियों में से एक था, Clive, who had a good presence of mind. He was just a salary man, just a clerk, who rose to the highest ranking. पहला गवर्नर ऑफ इंडिया बना था, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल बना थे. He could rise to this power just because of his military acumen. So we need to remember this कि जब 1740s में when British were engaged with French forces, Robert Clive was one of those person who was brought from England just to manage clerical activities, and he rose to his own power due to his own acumen. Now अब आप देखिए यहाँ टेरिटरीज जीत ली इन्होंने via Battle of Plassey and Battle of Buxar. They have territorial expansion. साथ ही साथ दीवानी राइट्स मिल गए, मतलब they had revenue sources. Now next thing is administrative functions. आपके पास पैसा भी है, आपके पास टेरिटरी भी है, तो अब अगला काम क्या होगा? You need to administer them rightly. Around this time, British Parliament, what it does is, it gives a regulating act. Regulating, as the word signifies, it regulates the activities and territories of British East India Company. So what it does is, अब तक आपका क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल. अब 1773 acts for the first time makes changes nomenclature to Governor General of Bengal, and around the same time Supreme Court of India gets established at Calcutta. तो ये मगर उस समय more or less it was dealing with the British subjects, but the important thing to remember is regulating act आया आपका 1773 में. ये it was a very natural outcome of the whole process, and the whole process being, you had occupied territories, you were getting some revenue out of it, so you had to manage your affairs.
So regulating act wanted to regulate the activities, and it regulated by two main things. Number one, it changed the nomenclature from Governor of Bengal to Governor General of Bengal, and second, in order to administer justice or to carry out justice, it established Supreme Court of at the Kolkata. After a span of what, in 11 years, another act came. This was Pitt's India Act. Now what it did was it established the dual control. By dual control we mean आपके जो ब्रिटिश की जो टेरिटरीज होंगी या ब्रिटिश का सारा साम्राज्य होगा इंडिया में, इट विल बी मैनेज बाय टू एंटिटीज, मतलब डुअल कंट्रोल रहेगा. नंबर वन इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल. ये ब्रिटिश के नॉमिनीज होंगे, ठीक है. जैसे मान लीजिए ये आपका ब्रिटेन हो गया, दिस इज ब्रिटेन. नाउ दिस इज इंडिया ओवर हेयर. नाउ व्हाट हैपेंस इज यहाँ जो डिपार्टमेंट होगा जो डील कर रहा होगा, दैट विल बी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC. what they will be doing is, this is government's nominee. सरकार का जो देखेगा इस चीज को. अब एक डील किससे करेंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से. ये भी ब्रिटेन में होंगे. अब एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? दे विल इंस्ट्रक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, GGB, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. समझ आया? जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होता है आज के समय, हम किसी भी एक वो देखते हैं, कोई भी कंपनी देखते हैं, लिस्टेड कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उस पर, ठीक है. तो वही उस समय उस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंपॉर्टेंट कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर वो थे जो विच वर गवर्निंग द होल प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंपनी. नाउ दे रिपोर्टेड टू बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन टर्न reported to British Parliament. So this was the chain, and court of director were the one who nominated, number one, Governor General of Bengal. कौन बनेगा? They used to nominate it. And how would they behave? GGB मतलब that is Governor General of Bengal. How would they behave? और क्या क्या activities करेंगे? This was all decided by Governor General of Bengal in consonance with COD, that is Court of Directors. अभी कुछ साल चला, आपके कुछ एक और आए बीच में गवर्नर जनरल्स. उसके बाद वन इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल दैट इमर्जेस इज इन 1786 वाज कॉर्नवालिस. Now Cornwallis is one of the prominent Governor General of Bengal. He took out many reformative steps. Among them, some of are he introduced permanent settlement system in Bengal. अब ये ज़रूरी क्यों है? लेट्स सी इट. देखिए अभी तक रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स थे इनके पास, ब्रिटेन के पास. आप ये एग्जांपल लीजिए, आपके पास ये मैं आपको कहता हूँ आपको रेवेन्यू मिलेगा, बट इफ़ यू डोंट नो हाउ मच रेवेन्यू यू विल बी गेटिंग, आपको फिक्स होगा कि नहीं हो, तो आप क्या करोगे? असेसमेंट नहीं कर पाओगे. सो द कॉर्नवालिस एट दैट टाइम वाज आल्सो फेस्ड विद द सेम प्रेडिकेमेंट. तो उन्होंने व्हाट ही डिड वाज ही एस्टैब्लिश्ड दिस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम. इसके तहत क्या किया गया? एक पर्टिकुलर पार्सल ऑफ लैंड, तो उस पर पहले ही डिसाइड कर दिया कि परपेचुटी में ही आप मतलब पूरी जिंदगी भर आप इतना रेंट दोगे, एक पर्टिकुलर सम ऑफ अमाउंट कर दिया. सो दैट वाज से 1000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, 1000 रुपी कर दिया. अब पूरी साल फर्स्ट हो या 100वें साल रेंट आपका 1000 रुपये रहेगा. हर साल आपको 1000 रुपये सरकार को देने पड़ेंगे. सो व्हाट इट डिड वाज इट ग्रांटेड श्योरिटी. ठीक है, श्योरिटी. नंबर टू व्हाट इट डिड वाज, अब आपको एक एज ये तो आप सोचो कलेक्ट करने वाले का, अब दूसरे की तरफ से सोचो, फार्मर की तरफ से. अब मुझे पता है कि मेरे 1000 रुपये जाएंगे, तो रेस्ट ऑफ अमाउंट आई कुड इन्वेस्ट इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. वेल द इनिशियल प्रोक्लेम्ड बेनिफिट वाज दिस कि पेजेंट्स के लिए फायदेमंद रहेगा, बट इट प्रूव डिजास्टर्स फॉर द जमींदार्स बिकॉज शुरू में, क्योंकि आपने हमेशा के लिए ये सेटलमेंट अमाउंट रखा, शुरू में इतना ज़्यादा रख दिया कि दे वर नॉट एबल टू पे. सो व्हाट हैपेंड वाज देयर वाज चेंज ऑफ दीवानी राइट्स, सॉरी चेंज ऑफ टाइटल्स. मान लीजिए आज वो चीज़ मेरे पास है, अब थोड़े टाइम बाद क्योंकि मैं रेंट नहीं दे पाया, थोड़े बाद वो ऑक्शन कर दी गई. जो और हाईएस्ट बिड रहेगा, जो 1000 रुपये के ऊपर दे पाएगा, कोई बिड कर पा रहा है, जो कलेक्ट कर पाएगा उसको दे दी, वो भी नहीं दे पाएगा और दोबारा से बिड होते रहेगी. तो व्हाट हैपेंड वाज ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग इनिशियल टाइम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, व्हाट हैपेंड वाज
आपकी बार बार चेंज करते रहे हैंड्स आपके लैंड, और पीपल वर नॉट एबल टू पे द रेंट. सो एंड वन ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग वाई जमींदारी सिस्टम वॉज एस्टेब्लिश वॉज, अभी तक क्या हो रहा था कि एक क्लास नहीं थी इनके पास, ब्रिटिश एम्पायर के पास, हु वर लॉयल टू देम. सो वाई जमींदारी सिस्टम, व्हाट दे वांटेड वाज एक पर्टिकुलर क्लास जिसके नाम पे लैंड दे दी. They wanted to establish that particular land, a class which was very loyal to British Empire. मान लीजिए आपको मैंने कुछ एक चीज दे दी कि आप इसका देखभाल रखो, तो you will be loyal to me, है ना. तो एक ये obvious reason है. तो by जमींदारी system they also wanted to create a class who was loyal to the empire. So हुआ नहीं हुआ, we'll see it in the future course. अब एक important अलग development आई was Cornwallis Code. Now Cornwallis Code और सिविल सर्विस रिफॉर्म्स कैन बी सीन इन अ सिमिलर वेन. अब मतलब क्या था इनका, अब तक क्या था कि आपका जो वहाँ से एक सिविल सर्वेंट आता था ब्रिटिश से, उसे ना कोई बताया जाता था क्या काम है आपका, ना सैलरीज वगैरह, ना सर्विस कंडीशन, कुछ नहीं बताते थे. तो इन 1793 व्हाट इट डज इज इट मेक्स अ पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट कि ये सैलरी रहेगी, ये आपके कार्यक्रम होंगे और ये आपको चीज़ें करनी पड़ेगी. सो इट मोर और लेस solidified and streamlined functions of the administrative authorities. So this is important. अब इसी दौरान आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है. मैसूर का इंपॉर्टेंट रूलर यू माइट बी नोइंग हिम, टीपू सुल्तान. ठीक है. Next important development is in 1798 to 1805 when Lord Wellesley was the Governor General of Bengal. So what Wellesley does is Wellesley introduces a system called subsidiary alliance. Subsidiary, जो ये मैं लिख रहा हूँ चीजें, these are very important and these questions have more or less been asked in some or other exam. So whatever I have written, make sure you are very thorough with them and you keep on revising those things. इसके इर्द गिर्द चीज़ें आप ज़रूर देखो, बट जो लिखित में चीज़ें हैं, आई एम राइटिंग ओनली द मेन थिंग्स. आप टेक्स्ट तो पढ़िए, जो साथ में मैं लिख भी रहा हूँ आप वो भी याद करिएगा ज़रूर. सो वेल्सली व्हाट ही डज इज ही इंट्रोड्यूसेस सब्सिडरी अलायंस. अब सब्सिडरी अलायंस क्या है? अब आप एवोल्यूशन में ही सोचिए क्या हो रहा है. अभी आपका टेरिटरीज आपके पास आ गई, टेरिटरीज के साथ साथ आपके फिर रेवेन्यू राइट्स भी आ गए. अब आपने रेवेन्यू राइट्स के साथ साथ आपने क्या किया, उनको परमानेंट भी कर लिए. अब आपको और क्या चाहिए? द नेक्स्ट थिंग यू नीड इज मोर टेरिटरीज. सो वन वे ऑफ गेटिंग मोर टेरिटरीज इज मेकिंग एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज. आप जाके उनको एक्सपेंड करो, विच इज़ वेरी कॉस्टली अफेयर. सो व्हाट मिस्टर वेल्सली डज इज, आप कुछ एक एम्परर्स के पास जाते हो, you ask them and you say them कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे फ्रॉम योर नेटिव रूलर्स, जो आसपास आपके एनिमीज उनसे हम करेंगे, बस हमारी कुछ एक शर्तें हैं. ये शर्तें क्या क्या हैं कि नंबर 1 कि आप हमारे पूछे बिना किसी से आप ट्रीटी में नहीं आओगे. सेकंड, एक ब्रिटिश एजेंट हमेशा आपके कोर्ट में रहेगा. ठीक है, और आप कुछ भी आपको कोई भी एडवाइस लेनी है उससे लोगे. थर्ड, एक आर्मी आप अपने एक्सपेंस पे, ब्रिटिश आर्मी अपने एक्सपेंस पे आपके एम्पायर में स्टेशन करोगे कि कल अगर बाई चांस लड़ाई होती है तो फटाफट वो आगे जा सके. सो व्हाट इट वाज, आपके सैलरीज होगी, क्योंकि एक वो अगर कोई साइन करता है तो आर्मी का मेंटेनेंस तो वही करेगा. अब वो आर्मी ऑफकोर्स उस रूलर के लिए ज़रूरत हो सकती है, मगर ब्रिटिश एम्पायर के लिए भी एक्सपेंशन के लिए ज़रूरत होगी उसकी. और क्या काम होगा उसका, जैसे अब मान लीजिए कि ट्रीटीज में वो ब्रिटिश एजेंट से ही पूछेंगे किंग कि करे ना करे. सो दोज इंटरेस्ट वर नॉट गाइडेड बाय द पर्टिकुलर रूलर्स इंटरेस्ट बट ब्रिटिश इंटरेस्ट. सो व्हाट इट डिड वाज, over a period of time without even getting into wars, British were able to annex more and more territories. और इसमें एक important चीज़ है, फर्स्ट ये क्वेश्चन आ सकते हैं, so we should remember it. First ruler to sign subsidiary alliance.
was Nizam of Hyderabad. Nizam of Hyderabad. अब 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है, इसमें टीपू डाइज, and after Tipu dies, Mysore is nothing but a very piece of cake for the British Empire, and they were able to occupy it more or sooner or later. लास्ट, अब इसके बाद आता है ट्रीटी ऑफ बसीन. ट्रीटी ऑफ बसीन इज नथिंग बट ब्रिटिश ट्रीटी विद पेशवा बाजीराव टू. अब ये पेशवा का क्या है हिसाब? आफ्टर द डेथ ऑफ after death of Shivaji's successor, what happened was Maratha Empire broke into five important clans. I'll write some important ones. For example, which we know, like Scindias of Gwalior, Peshwa of Pune, Gaikwad of Baroda. So in this way, what happened was in 1802, one of these, Peshwa, which were of Pune, they signed a treaty of Bassein, which was more or less a subsidiary alliance with British. And what this did was they accepted British suzerainty over Marathas. अब एक पर्टिकुलर क्लैन ने साइन कर दी थी, दूसरी वर स्टिल द अदर्स वर नॉट वेरी इन फेवर ऑफ दिस एंड दे केप्ट ऑन फाइटिंग. इनफैक्ट आपका थर्ड एंग्लो मराठा वॉर वेंट एज लेट एज इन 1817 टू 1819. तो यहाँ कंप्लीटली सबड्यू होते हैं, और जो आखिरी आपका पेशवा बाजीराव टू होते हैं उसको एग्जाइल में भेज देते हैं, कंपनी पेंशनर बना देते हैं उसे. आफ्टर 1802 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इज 1809 वेयर ट्रीटी ऑफ अमृतसर इज साइंड. ट्रीटी ऑफ अमृतसर इज नथिंग बट ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड ब्रिटिश. अब ये क्या था? इस समय महाराजा रंजीत सिंह वॉज अ वेरी ग्रेट फोर्स टू रेकन विद. हर चीज में ही वॉज वेरी ग्रेट. ही हैड द सिमिलर स्टाइल ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एज द ब्रिटिश एंड ही कुड डिफीट देम इन वॉर if need be. So British had one policy: conquer wherever possible and shake hands wherever needed. तो यही, so what this required was कि they knew रंजीत सिंह was a force to be reckoned with. तो ना उनसे लड़ाई ना करते हुए they signed a treaty with him, and this treaty was in 1809 and is called Treaty of Perpetual फ्रेंडशिप. मतलब आपकी हमेशा हमारी दोस्ती रही हुई. अब 1809 के बाद 1813 इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है, वेयर चार्टर एक्ट कम्स. चार्टर एक्ट ऑफ 1813. अब इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं लिख देता हूँ. सम ऑफ ₹1 lakh given for education. One other important is Christian missionaries allowed. Now why this is important is, अब 1813 के आसपास ब्रिटेन में there are some thinkers, liberal thinkers या फ्री ट्रेड थिंकर्स. इसी समय ही आपके एडम स्मिथ जो हैं लेजर फेयर की बात करते हैं. लेजर फेयर की बात करते हैं तो ही बिलीव्स एवरीवन शुड हैव द राइट टू ट्रेड. अब अंडर दिस कंटेक्स्ट द ब्रिटिश लेजिस्लेटर्स वर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड. दे आल्सो बिलीव्ड एवरीवन शुड हैव द राइट टू ट्रेड. साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपका बूम पे होता है ब्रिटेन में. इंग्लैंड हैड बीन वेरी मच सैचुरेटेड. इंग्लैंड आपकी सैचुरेट हो गई थी मार्केट, क्योंकि इतना प्रोडक्शन आपकी आ रही थी इंडस्ट्रियल गुड्स की. तो उस समय वो दे वांटेड वाज अ न्यू प्लेस वेयर दे कुड सेल देयर प्रोडक्ट्स. उसी समय ट्रेडर्स भी, अब हु वुड सेल द प्रोडक्ट्स? ईस्ट इंडियन कंपनी वाज मोर और लेस इंपोर्टिंग थिंग्स. इंडिया से लेके जाके वो इंग्लैंड में बेच रही थी. व्हाट दे वांटेड वाज द अदर वे अराउंड. वहाँ से जो गुड्स हैं दे कुड सेल टू इंडिया. सो ट्रेडर्स वर वांटेड. अब मान लीजिए, अब जो ट्रेडर्स हुए आपके, अब वो सामान वही चीज़ बेच पाएंगे जिसकी डिमांड हो इंडिया में. सो इन ऑर्डर टू एक्लेमेटाइज
Indians to British good, what they did was there were two main developments. One was Christian missionaries, and second was education. अब मान लीजिए by this act they wanted to create Indians who had English tastes. इंग्लिश के टेस्ट हो, जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी एजुकेशन आप पढ़ रहे हो, उनकी किताबें वगैरह पढ़ रहे हो, तो वहाँ नॉवेल्स पढ़ते हो आप, एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल बताएंगे वो नॉवेल्स. सो व्हेन एन एवरेज इंडियन रीड्स दोज थिंग्स ही विल बी मोर और लेस infatuated by those things कि अच्छा ब्रिटिश में ये चीज़ हो रही है. सो बाय एजुकेशन दे वांटेड टू एस्टेब्लिश अ सिस्टम बाय विच दे कुड कल्टिवेट ब्रिटिश चॉइसेस. और साथ ही साथ क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड बाय दिस सेक्ट. ये भी यही चीज़ करना चाहती थी कि आपको क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिए. क्रिश्चियन कन्वर्ट होते तो साथ साथ प्रेफरेंसेस भी चेंज होगी आपकी, और साथ साथ इसी की करके आपका इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन हो रहा है उसके गुड्स कुड बी सोल्ड इन इंडिया. सो दीज आर सम कंबाइंड डेवलपमेंट्स. In fact, when we see history, we cannot see very, linear things. There are so many things converging at one particular point. तो हमें वो सारी चीज़ें देखेंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे. तो अभी तक I hope everything is understood. Now, just to summarize, till now, what has British done is, British has ended some of British Empire. British Parliament has ended some of monopoly of company. It has started sending some people who will cultivate British culture in India. More or less, it is expanding its own territories. Now, another development now which starts emerging in 1820s is the Rayatwari system. Rayatwari system. अभी रैयतवारी क्या है? रैयतवारी रैयत इज फार्मर. ठीक है, फार्मर होते हैं. अब क्या हो रहा था 1793 में, जैसे हमने देखा, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या जमींदारी सिस्टम वाज केटरिंग टू जमींदार्स. जमींदार्स आपकी मॉडल क्लास बन रही थी, और जमींदार क्या कर रहे थे? दे वर एक्सट्रैक्टिंग आउट रेवेन्यू. ब्रिटिश ने सोचा कि इस समय अब 20 साल हो गए थे इस चीज़ को, 20-30 साल हो गए थे परमानेंट सेटलमेंट को. अब आज मान लीजिए जैसे कि आपके सोने का भाव 1998 में अराउंड 5000 रुपीज़ था पर तोड़ा. अब उस समय वो ज़्यादा था. आज मान लो उस टाइम अगर 15,000 भी होता, ठीक है, काफ़ी था लोगों के लिए, शायद खरीद ना पाते. मगर अगर वो हमेशा के लिए फिक्स कर देते 15,000 रुपये, आज के समय देखिए 15,000 इज़ नथिंग. सो ऐसे ही परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का काम हो गया था उस समय. इवन दो द रेट वॉज वेरी मच हायर, what it led was it fixed the revenue which over a period of time was very much less. So British की जो revenue collection ability थी वो कम हो गई थी. So what Britain did was, या British administrator did was, they introduced a new system called रैयतवारी system. अब इसमें periodic revision of land revenue होगा, और periodic revision इसमें ज़मींदार से कलेक्ट नहीं करेंगे, सीधा आपके फार्मर से कलेक्ट करेंगे. अब ये क्यों कलेक्ट करेंगे? इंपॉर्टेंट इमर्ज होते हैं क्योंकि इसी समय आपके ज़्यादा पीजेंट रेवोल्यूशंस स्टार्ट होते हैं. पीजेंट रेवोल्यूशन स्टार्ट होते हैं तो क्यों? ज़मींदार ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, उनसे एक्सप्लॉयटेशन हो रही है. तो और ब्रिटेन के खिलाफ वो दे आर रिबेलिंग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ. सो व्हाट दे डू इज, उनको लगता है कि ज़मींदारों को ज़्यादा पैसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा पेजेंट्स को ही पैसिफाई करेंगे, पेजेंट्स से ही सीधा कलेक्ट करेंगे, पेजेंट्स को ही हम डिमांड्स बताएंगे हमारी, ये हमारे रेंट की. तो दिस वाज रैयतवारी सिस्टम. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर मनरो एंड रीड एंड अंडर दीज रीजन्स. अब इसी समय एक और दूसरा इमर्ज होता है इंपॉर्टेंट, महलवारी सिस्टम. महलवारी सिस्टम क्या था? अभी महल एक पर्टिकुलर क्लस्टर ऑफ विलेज है कि पहले ज़मींदार थे, अब एक तरह से कुछ एक विलेजेस को इकट्ठा करके उनका इकट्ठा ही एक रेवेन्यू सिस्टम बना के, और एक ही बंदा पूरे विलेज को ही कहते थे कि आप ना जमींदार को करें ना आप इंडिविजुअल राइट्स को करें. राइट्स मतलब फार्मर्स, RYOTS, ठीक है, राइट्स, ना इंडिविजुअल राइट्स को करें. आप कह रहे हो सीधा एक विलेज को ही आप ड्यूटी लगा रहे हो. अगर एक बंदे ने भी दिया तो पूरा विलेज हैज टू सफर. सो विलेज एज अ कलेक्टिव वाज सीन एज एज अ एंटिटी that shall pay the revenue. At the same time, in 1828 and 1835, Lord William Bentinck becomes governor
Governor General of Bengal. He was a very reformist गवर्नर जनरल. तो उन्होंने ये चीज़ें की इंपॉर्टेंट, जैसे एबोलिशन ऑफ सती, चार्टर एक्ट ऑफ 1833. सो ये चीज़ें, चार्टर एक्ट वैसे किंचन ने आपको कराया होगा, तो आप वहाँ से भी थोड़ा देख लीजिए. पॉलिटी क्लासेस में आप यूट्यूब पे होंगे ये फर्स्ट क्लास, उसमें आपको ये मिल जाएंगे चार्टर एक्ट्स. सो मेक श्योर यू वॉच दैट लेक्चर. अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली बताया गया उसमें, तो चार्टर एक्ट वहाँ से आप देख सकते हो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वॉज मैकालेज मिनट. अब मैकालेज मिनट का क्या है, जब 1813 में ये आई क्रिश्चियन मिशनरीज और 1 लाख का ग्रांट मिला एजुकेशन के लिए. अ पर्टिकुलर कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस वॉज एस्टेब्लिश्ड. अब पब्लिक इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, ये क्या कर रही थी कमेटी? इट वॉज सीइंग वेदर वी शुड इंस्ट्रक्ट या टीच द इंडियन पीपल in Hindi या vernacular language और in English language. So ये चलती रही कंट्रोवर्सी, कई समय तक चलती रही, unless in 1835, until 1835 where Lord Macaulay, what he did was he solidified and he said English shall be the medium of education. And what he said, quote unquote, was we want to create a class of Indians with British in taste. ठीक है, तो ये मोर और लेस क्या है, एजुकेशन इंग्लिश लेना चाहते थे, सो दैट इंग्लिश लविंग और इंग्लिश लाइक क्लास could be created, and this English like to create this English like class shall be useful in number 1, carrying out day-to-day activities, number 2, legitimizing ब्रिटिश एम्पायर. ओके, सो ये काम था उनका. तो मैकाले मिनट 1835 में हुआ. इनफैक्ट मैकाले कैन बी ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू, ही वॉज द मेंबर ऑफ फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन, लॉर्ड मैकाले. 1839 में अब क्या होता है कि रंजीत सिंह डाइज. इस समय सिंस रंजीत सिंह डाइज, नाउ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज वेरी मच वल्नरेबल. अंडर दिस पीरियड some wars are taken, like first Afghan war, Sindh is the next, and in 1845 and 46 जो हमने शुरू में देखा था 1809 में ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप जो साइन की गई थी, they violate that British violate that particular treaty and they go into war for the first time with Sikhs as first Anglo-Sikh war, and this led to Treaty of Lahore where the British Empire forced some humiliating conditions on Sikh, and this humiliating conditions led to Second Anglo-Sikh War in 49. One important figure that emerges around the same time is Lord Dalhousie. Lord Dalhousie was also very influential person and very important person. जैसे ही आपके कॉर्नवालिस थे, वेल्सली थे, ऐसे ही important एक गवर्नर जनरल आपके थे लॉर्ड डलहौजी. Now what he does is he introducing a concept called doctrine of lapse. ये concept यही लेके आते हैं, doctrine of lapse. अब doctrine of lapse क्या है? It directly says, I'll write it, if any native ruler dies without leaving any heir, उत्तराधिकारी मतलब
डिसेंडेंट लिख देते हैं, विदाउट लिविंग एनी ईयर the territory shall be passed on to British। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये लेके आते हैं और इसी के थ्रू काफ़ी प्रिंसिपल चीज़ें, प्रिंसिपल जगहें ब्रिटिश इज एबल टू कॉन्क्वर, लाइक सतारा, जैतपुर, संभालपुर, झांसी, नागपुर। अब ये जो ये लिखी हुई है ना जगहें, इनको आपको ऐसे ही याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं और आ भी सकता है कि अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ एनेक्सेशन, तो पहले सतारा आएगा, फिर जैतपुर आएगा, फिर संबलपुर, तो ऐसे कैसे याद करना है, ऐसे बिल्कुल सेम उसमें। नाउ वन वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सेकंड ही डिड वाज अवध वाज द नेक्स्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नमेंट या मेल एडमिनिस्ट्रेशन। इसी समय फर्स्ट रेलवे बिटवीन बॉम्बे टू थाने एस्टेब्लिश हुई। पहला टेलीग्राफ लाइन ले की गई। 1854 में वुड्स डिस्पैच आया। अब वुड डिस्पैच क्या था आगे भी देखेंगे, मगर अभी आप देख लीजिए बस क्या है। अभी तक आपकी सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि आप इंग्लिश में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ, ये करो वो करो। सो वुड डिस्पैच मोर और लेस सील्ड द फेट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। व्हाट इट डिड वाज, इसने कहा कि एक हाइब्रिड सिस्टम होना चाहिए। मान लीजिए जैसे आपकी जो लोअर लेवल के स्कूल्स हैं, स्कूल बच्चों के, वहाँ वर्नैकुलर में पढ़ाइए, ऊपर वाले में मिडल से ऊपर थोड़ा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है एंग्लो वर्नैकुलर पढ़ाइए मान लीजिए, और टॉप के जो हैं उसके बाद ये जो कॉलेजेस होंगे ये यूनिवर्सिटीज़ से एफिलेट होंगे, यूनिवर्सिटीज़ एफिलिएटेड। एक तरह से सिस्टम सा बनाया। अब जैसे इसी का एग्जांपल आज भी हम यूज़ कर रहे थे कि 6th क्लास तक आपके जो पेरेंट्स होंगे मोर और लेस दे माइट हैव स्टडीड ओनली हिंदी, 7th क्लास में दे स्टार्टेड स्टडिंग इंग्लिश। सो दिस इज मोर और लेस इम्प्रिंट ऑफ वुड्स डिस्पैच कि आपको 6ठी क्लास तक आपको वर्नैकुलर ही पढ़ा रहे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है कि मान लीजिए कुछ एक बच्चों को पढ़ना ही नहीं था आगे। अब जैसे सम ऑफ माई रिलेटिव्स, ओल्डर रिलेटिव्स, दे आर 8th पास बट दे आर वेरी एजुकेटेड इन देयर ओन जनरेशन, और उनको दे फील एंड दे वर यू नो द मोस्ट एजुकेटेड पीपल ऑफ देयर टाइम्स, 8वीं तक भी पढ़ गए। तो अब क्यों है, क्योंकि कईयों को आगे वही नहीं बनता कि इससे ज़्यादा आप पढ़ें। तो वुड डिस्पैच व्हाट इट वाज कि एक बेसिक लेवल तक आप पढ़ा दीजिए इंग्लिश या हिंदी माध्यम में, उसके या वर्नैकुलर लैंग्वेज, या महाराष्ट्र में तो मराठी में पढ़ा दिया, कर्नाटका में तो कन्नड़ पढ़ा दिया, ऐसे ही। सो व्हाट इट डिड वाज एस्टेब्लिश्ड vernacular schools at vernacular schools at the local level, then Anglo vernacular, and then colleges which were affiliated by universities. आपकी important universities were established at this time. Example आपकी बॉम्बे, कलकत्ता और ये मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ बनी थी उस समय। अब ये 1848 जो मैं आपको बता रहा था, 49 में एंग्लो सिख वॉर हुआ था क्योंकि सब डिसकंटेंटमेंट रह गई थी। सो इट हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डलहौजी। इसी दौरान अब 55, 56 में सांथल रेबिलियन होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रेबिलियन, लेड बाय सिद्धू एंड कानू अगेंस्ट डिकूज। अभी याद रखना, ये तो बंदों के नाम है, सिद्धू और कानू नेम। डिकूज इज मनी लेंडर। तो ये याद करना हमने। और व्हाट इट डिड वाज, इट वाज सक्सेसफुल इन दिस एस्पेक्ट दैट इट लेड टू अ स्पेसिफिक एरिया फॉर सांथल ट्राइब। ये ट्राइबल रेवोल्यूशन में हम देखेंगे, तो अभी बस एक बेसिक आइडिया होगी। इस समय आपके साथ साथ देखिए, आप टेलीग्राफ बनने लगी, आपकी रेलवे लाइंस बनने लगी, तो इस समय क्या होने लगा, रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए यू नीडेड वुड कहाँ मिलेगा आपका, फॉरेस्ट में आपके कौन रहते थे, ट्राइबल्स। तो इस समय क्या होगा कि बिकॉज नाउ ब्रिटिश वर एक्सपेंडिंग इन टू एरियाज विच वर अर्लियर अनटच्ड,
even by the princely states. So when they started going into those forests or into those areas, they started coming into contact with some other people, other sect of people, and this led to another set of revolts. So these were tribal revolts as well as peasant revolts. So we'll be seeing those things. All these things culminated into one important development, which was revolt of 1857. Now, revolt of 1857, as we know, was very disastrous for the British Empire as well as for India, because a lot of casualties were happened. So what it did was, what is led to was Government of India Act of 1858. This Government of India Act of 1858 ended company's rule. अब तक क्या important चीज़ थी? The East India Company was calling the shots. चाहे कुछ हो, मतलब while the interference of the British Crown or British Parliament was there, but still it was company that was calling the shots, that was signing the documents by Act of 1858, which is also known as Good Government Act. Good Governance Act. Let us see. मैं थोड़ा nomenclature में ध्यान कर लें. Let's see. 1858 Act, also known as a Government of India Act for Better Government of India. So we'll remember it this way. Government of India Act for Better Government. For also called for better government. अभी आ सकता है, ठीक है. तो ये आता है. It does a lot of changes. One of those changes being, अब तक आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहने लगे, जिसे हम उसको वाइसरॉय कहना स्टार्ट कर दिया था इस एक्ट के थ्रू. ये जितने भी एक्ट हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सारे एक्ट्स आप एक अलग पॉलिटी की क्लास नंबर 1 आप यूट्यूब पे हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ एक मिलेगी आपको, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इंडियन पॉलिटी क्लास 1, उसमें सब बताए हुए सारे एक्ट्स टिल 1947 स्टार्टिंग विद 1773. सो मेक श्योर यू गो एंड वॉच दैट वीडियो. नाउ आफ्टर दिस 1860 वाज इंडिगो रिवोल्ट विच लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिगो कमीशन. इंडिगो क्या होता है? नील. और इसी समय आपका दिस नील दर्पण, this was a play written during this time, Neel Darpan, and this was, need to remember it, 1861 Indian Council Act. ये भी उसमें लिखा हुआ, आप प्लीज़ उसी में देखना. आपको बस बेसिक बता देता हूँ कि एक तरह से पोर्टफोलियो सिस्टम इसमें इंपॉर्टेंट आया था, पोर्टफोलियो सिस्टम. और आपकी जितने भी एक्ट आए लेजिस्लेचर को इंक्रीज करते गए, बस लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो एक थोड़े ज़्यादा लेजिस्लेटिव मेंबर्स हेड होगी. अब पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है? जैसे आज मंत्रालय अलग अलग आदमी के पास अलग अलग मंत्रालय हैं, ऐसे ही इस एक्ट ने भी क्या किया था, जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, द एग्जीक्यूटिव कमेटीज अब तक कंसेंसस बेस्ड डिसीजन होते थे. कोई भी डिसीजन आया सभी जनमत में साथ ही साथ डिसीजन लेते थे. व्हाट 1861 एक्ट डिड वाज, एक पर्टिकुलर मेंबर को एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो दे दिया कि आप मंत्रालय ये देखिएगा. तो 1861 Act was the one which did it, and along with it, Forest Department was established in 1864. 1872 was the time when first All India Census was done. अब आपको एक चीज़ याद रखनी है इसके बारे में. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट सेंसस इन इंडिया, तो यू हैव टू टेक इन 1872 अंडर लॉर्ड मेयो. लॉर्ड मेयो. अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट डेसिनियल सेंसस, इट वाज 1881. तो 10 साल के बाद स्टार्ट करने वाली सबसे पहले हुई. 10 साल बाद अब एक नई सेंसस आएगी. सो इट वाज इन 1881. अब these were some of the peasant movements will be seeing in the peasant rebellions. और आपको क्यों ये याद ऐसे रखनी कि जैसे जैसे एक्सपेंड होता गया आपका ब्रिटिश एम्पायर, वैसे वैसे आपको अलग अलग जगह जाता रहा, अलग अलग चेंजेस मिलते रहे. वहाँ एक अलग सेक्ट्स थे, अलग ग्रुप ऑफ पीपल थे, एंड दे स्टार्टेड रेबेलिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, एंड सम ऑफ देम
found manifestation in tribal revolts, while some other found manifestation in peasant revolts. मगर एक चेंज जो इम्पोर्टेंट बस हुआ था 1857 से पहले, मोर और लेस दिस रेवोल्यूशंस या रिवोल्ट्स वर वेरी मच बैक्ड बाय फोर्स. आपके फोर्स होते थे या वायलेंस होता था. आफ्टर 1857 these revolts were more or less, मैं लिख देता हूँ, ये 1857 हो गया. इससे पहले रिवोल्ट्स थे वायलेंस इन रिवोल्ट्स. अब 1857 के बाद के रिवोल्ट्स लीगली सॉल्व, क्योंकि आपके अब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वगैरह और जुडिशियल सिस्टम लोगों को समझ आने लगा था. दे फाउंड इट इज़ बेटर टू गो टू अ कोर्ट एंड गेट द टाइटलमेंट ऑफ लैंड रादर देन जस्ट गिविंग अवे योर लाइफ. सो ये एक चेंज हुआ था 1857 के बाद. सबसे एग्जांपल जैसे आपका इंडिगो रेवोल्यूशन था, आपका इंडिगो रेबेलियन जो हमने देखा 1860 में. इट वाज नॉट अ वायलेंट रिवोल्ट, इट वाज अ रिवोल्ट व्हिच वाज सपोर्टेड बाय द इंटेलिजेंसिया ऑफ दैट टाइम and was fought in the courts and not on the battlefield. अब 76-78 में फेमीन, दिल्ली दरबार, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं. अब देख लो, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं इनको. अब ये ज़रूरी है. 1878 में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, ये आपकी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होती हैं. अब वर्नैकुलर प्रेस एक्ट क्या था? जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपका ब्रिटिश एम्पायर क्या एक्सपेंड करी जा रहा है, तो ये एक्सपेंड टेरिटोरियली नहीं, आपके पर्सनल स्पेस पे भी एक्सपेंड कर रहे हैं साथ साथ. अब इस दौरान देयर इमर्जेस अ क्लास ऑफ न्यूज़पेपर्स, अ पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ पीपल हु स्टार्ट राइटिंग अगेंस्ट दिस इल एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन एवरी डोमेन ऑफ द लाइफ. तो अब भी हिंदी में लिखते थे, बिकॉज हिंदी में या हिंदी या वर्नैकुलर क्या है कि आपकी लोकल भाषा में लिखते थे, सो दैट द रीच कैन बी इंक्रीज्ड. सो व्हाट लॉर्ड लिटन डिड वाज he introduced this vernacular press act, also called as gagging act. गैगिंग एक्ट का मतलब क्या है कि आपको, मान लो कल मुझे, आज चीज़ें हुई, अखबार रात को प्रिंट में आएगा मेरा, कल की न्यूज़ें, मतलब रात को 10 बजे कट ऑफ है, 10 बजे तक जितनी भी इवेंट्स हुई मैंने अखबार में छाप दी. अब 10 बजे के बाद वो जो होगा डीसी के पास जाएगा, डीसी चेक करेगा ठीक है कि नहीं, इसमें ज़्यादा ऐसी चीज़ें तो नहीं जो लोगों को भड़का दे. तो दिस वाज डन बाय वर्नैकुलर प्रेस एक्ट. और एक कौन से अखबारों पे लगा? ओनली वर्नैकुलर पेपर्स. ठीक है, हर एक पेपर पे नहीं लगाई, सिर्फ ओनली दोज पेपर्स विच वर वर्नैकुलर इन नेचर, जो आपके लोकल लैंग्वेजेस में था. अब जैसे एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं, आपने नाम सुना होगा अभी एबीपी न्यूज़. सो व्हाट डज एबीपी स्टैंड्स फॉर? अब एबीपी स्टैंड्स फॉर अमृत बाजार पत्रिका. एबीपी, अमृत बाजार पत्रिका. अमृत बाजार पत्रिका वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय शिशिर कुमार घोष. इसी समय 1860s के आसपास वो एस्टेब्लिश की गई थी. सो इट वॉज इन वेरी प्रेवलेंट इन और वेरी पॉपुलर इन बंगाल रीजन. इसी समय क्या होता है, इट वॉज गिविंग सेडिशियस आर्टिकल्स, बिल्कुल चीज़ें बताती थी उसके बारे में सब कुछ, क्या, हाउ ब्रिटिश एम्पायर इज डिग्रेडिंग इंडिया. तो इसके खिलाफ वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लगा के बंगाली में थे, तो रातों रात ही एबीपी, दैट इज अमृत बाजार पत्रिका, चेंज फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश जस्ट टू प्रिवेंट दिस एक्ट. तो हमें याद रखना है, बस ऐसे स्टोरी इसलिए बताई ताकि वी कैन रिमेंबर दिस. वर्नैकुलर प्रेस एक्ट अंडर लॉर्ड लिटन meant to gag the local newspapers. साथ ही साथ आर्म एक्ट आता है आपका. आर्म एक्ट वॉज, इंडियंस वर नॉट अलाउड टू कैरी आर्म्स दैट इजीली. 1882 हंटर कमीशन एस्टेब्लिश. अब हंटर कमीशन, इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में दो हंटर इंपॉर्टेंट है. एक तो हंटर कमीशन, अभी याद रखना है, कमीशन, अदर इज हंटर कमेटी. हंटर कमीशन जो था आपका, इट वाज इन 1882 एजुकेशन. हंटर कमेटी आफ्टर जलियांवाला बाग. ठीक है, ये याद रखना है, हंटर कमीशन एंड हंटर कमेटी. अब सब कुछ चल रहा है. उस समय अब 1885 में एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होती है.
वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट सेशन एट बॉम्बे बाय एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज WC बनर्जी। तो ये याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC, तो WC बनर्जी रहेगा, और बॉम्बे में हुई थी पहला इसका सिटिंग। 1891 वाज एज ऑफ कंसेंट एक्ट। वाई वी नीड टू रिमेंबर इज, कई बार क्रोनोलॉजी में आ जाता है कि डेट आ जाती है वो करने के लिए इसकी, एंड वाई डू वी नीड टू रिमेंबर इज, और क्या था इसमें रेज्ड एज ऑफ मैरिज एंड कंज्यूमेशन, तो ये इंक्रीज करती है। 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट expanded Indian रिप्रेजेंटेशन बट लिमिटेड। अब 1899 में कर्जन आए। कर्जन, अब अगर आप सारे गवर्नर जनरल्स को अगर आप रैंक करो बाय देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन, कर्जन वाज द फॉरमोस्ट ऑफ देम। सबसे आपका जो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन एडमिनिस्ट्रेटर दैट इंडिया हैज एवर सीन वाज कर्जन। इसकी इम्प्रिंट्स, कर्जन की इम्प्रिंट्स कैन बी इवन सीन एज ऑफ नाउ। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, one is he introduced a concept called tenure system, and one he introduced a concept called split system. अब स्प्लिट सिस्टम क्या है और टेन्योर सिस्टम क्या है? स्प्लिट सिस्टम आप वाकिफ रखते हो अगर एडमिनिस्ट्रेशन से। देयर आर सम सेट ऑफ पीपल हु फॉर्मुलेट योर पॉलिसीज एंड देयर आर सम सेट ऑफ पीपल हु एग्जीक्यूट दोज पॉलिसीज। आपके सेक्रेटरीज, जैसे हम देखते हैं ना, एक दो चीजें हैं आपकी, सेक्रेटरीज, अनदर इज डायरेक्टर। सेक्रेटरीज क्या है? सेक्रेटरीज हु सिट इन द सेक्रेटरीट एंड हु फॉर्मुलेट द पॉलिसीज। डायरेक्टर आर द वंस हु इम्प्लीमेंट दोज पॉलिसीज। तो ये फर्क है। तो दिस सिस्टम डिफरेंस बिटवीन क्लास ऑफिसर वाज डन बाय लॉर्ड कर्जन। साथ ही साथ व्हाट इट डिड वाज इंट्रोड्यूस अ कंसेप्ट कॉल्ड टेन्योर सिस्टम। अगर जैसे आप IAS बनते हो, IAS में क्या है, कुछ पहले 8-9 साल आप पोस्टिंग करोगे एज DC और एट फील्ड लेवल। 8-9 सालों बाद आप सेक्रेटरी लेवल पे चले जाते हो, मतलब सेक्रेटरीट में चले जाते हो। तो दिस इज टेन्योर सिस्टम। अब ये क्यों किया था कर्जन ने? मान लीजिए उस समय देखो, आज तो चलो फिर भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अच्छे हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लो, टेली कम्युनिकेशन कर लो, 100 चीज़ें करो। उस समय क्या था, आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस इतनी टेलीग्राफ से ही होते थे। अब जो लोग फील्ड में काम करेंगे 7-8 साल वो सीख लो आप फील्ड में काम कैसे होता है, क्या क्या नीड्स हैं। तो जब वो 9 साल बाद वापस पॉलिसी मेकिंग में आएंगे, सो दे विल बी वेरी मच अवेयर अबाउट हाउ द सिस्टम ऑपरेट्स, व्हाट पीपल नीड। सो दिस वाज टेन्योर सिस्टम. So these were introduced by Curzon. Or one notorious thing which he did was partition of Bengal, and this partition of Bengal was resisted by Indians via Swadeshi boycott movement. ये हम आगे देखेंगे. कर्जन के समय ही साथ साथ बंगाल और महाराष्ट्र रीजन में आपके रेवोल्यूशनरी स्ट्रीम स्टार्ट होती है, एंड अनुशीलन समितिज और युगांतर, दिस वाज कमिटी एज वेल एज अ पीरियोडिकल कमेटी भी थी ये, और पीरियोडिकल मतलब एक किताब, एक मैगजीन लगा लो, मैगजीन लिख देते हैं, मैगजीन भी थी। तो ये इमर्ज हुई इसी समय। 1906 मुस्लिम लीग फाउंडेड एट ढाका। 1907 सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट का क्या है ये हम कांग्रेस के सेशंस में देखेंगे क्या था, मतलब इसका क्यों हुआ, बट इतना हम याद कर सकते हैं कि अभी मुस्लिम लीग भी हो गया, और देयर स्टार्टेड इमर्जिंग डिफरेंसेस बिटवीन सेक्ट्स ऑफ कांग्रेस टू। कांग्रेस में कुछ एक नरम दिल के थे, गरम दिल के थे, ठीक है। तो वो नरम दिल और दैट वर मॉडरेट्स एंड गरम दिल वर एक्सट्रीमिस्ट्स, सो दे fought between each other, and in Surat conference, in Surat session of Congress, there emerged a split between both of these sections. 1908 Alipur bomb case, Khudiram Bose was executed under this. 1909 Morlemento reform, आपके उस वीडियो में होंगे, आप प्लीज देखना है। और वन थिंग विच इमर्ज्ड वाज सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स।
1911 में, अब देखिए ये याद रखनी चीज़ें, 1905, 1907 और 1911 बंगाल पार्टीशन announced. बंगाल पार्टीशन एग्जीक्यूटेड, कैरिड आउट, और इसमें बंगाल पार्टीशन एनल्ड। तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है बंगाल पार्टीशन के लिए। अनाउंस किया 1905 में, एग्जीक्यूट किया 1907 में, और अनल किया 1911 में। और 1911 में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्ट फ्रॉम बंगाल में कलकत्ता टू दिल्ली, और इसी समय आपका राष्ट्रपति भवन सब कुछ इसी समय बनते हैं आपके ये सारे चीज़ें। 1913 में गदर मूवमेंट होती है आपकी। गदर मूवमेंट के रिलेटेड ही एक्टिविटी है कोमागाटा मारू इंसिडेंट। सो कोमागाटा मारू वाज अ चार्टेड शिप। अब कई बार आ जाते हैं, व्हाट इज कोमागाटा मारू? कोमागाटा मारू वाज अ चार्टेड शिप। क्या हुआ था, ये इंडिया वालों ने शिप लेके गए थे हांगकांग से, एक चार्टेड शिप था, और ये कनाडा में जा रहे थे कुछ एक सिख और इंडियंस। सो दे weren't allowed to come inside, or some of the people died or something. You can read about it. So Komagata Maru incident, 1914 to 18, First World War. During this period, what happened was Gandhi returns to India in 1915. ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है आपकी। और 1915 में ही हिंदू महासभा आपकी बनती है। जस्ट अ सेकेंड, लेट अस चेक टू एक बार हिंदू महासभा, मेरे ख्याल से यही है, बट आई डोंट वांट टू से रॉन्ग थिंग्स। महासभा फाउंडेड, सो हाँ 1915 हिंदू महासभा इज फाउंडेड। 1916 लखनऊ पैक्ट। अब जो 1907 में आपकी सूरत स्प्लिट हुआ था, बाय 1916 व्हाट हैपेंड वाज, अब वो स्प्लिट एक पैक्ट में बन गया था, फिर मॉडरेट्स एज वेल एज एक्सट्रीमिस्ट केम टुगेदर, एज वेल एज ड्यूरिंग लखनऊ पैक्ट मुस्लिम लीग, MLEs मुस्लिम लीग एंड INCs इंडियन नेशनल कांग्रेस, दे बोथ गॉट मर्ज्ड, मतलब इकट्ठा इन्होंने जॉइंट प्रोग्राम बनाए। 1917 में गांधी's फर्स्ट मास इंटरवेंशन वाज डन, व्हिच वाज चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह was in Bihar plus was for the plight of indigo planters. अब अगला था खेड़ा सत्याग्रह 1918। सो टैक्स परमिशन, देन इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो ये याद रखनी है, ऐसे बिल्कुल इसी ऑर्डर में आता है कई बार अरेंज क्रोनोलॉजिकली, तो वी हैव टू रिमेंबर इन दिस वे। 1919 was Rowlatt Act passed. Rowlatt Act was nothing but अब मोर और लेस अब प्रिवेंटिव डिटेंशन की तरह का एक तरीका चीज़ थी, विच वारंटेड नो अपील, नो वकील, नो दलील। तो ये चीज़ें अलाउ नहीं करती थी। अगर किसी को शक भी हुआ किसी पर ब्रिटिश एम्पायर को, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको सीधा जेल में डाल सकते हैं, और उस पर कोई ना वकील चाहिए, ना दलील, ना कोई अपील होगी उसकी। सो अगेंस्ट दिस एक्ट सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड, और जलियांवाला बाग में लोग बैठे थे, इसके खिलाफ ही बैठे थे, और इस समय जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हैपेंस। साथ ही साथ मोंटेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म आते हैं, डायरकी इंट्रोड्यूस होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं लिख देता हूँ बस इंपॉर्टेंट क्या है। 1919 मोंटेग क्लेम्सफोर्ड एक्ट। इसमें क्या था, डायरकी इंट्रोड्यूस्ड। अब डायरकी क्या है, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, डायरकी डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन टू, रिजर्व्ड, ट्रांसफर्ड। अब समझो आप एक बार बस, 1919 से पहले क्या हो रहा था कि ब्रिटिश एम्पायर के पास है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के पास सारे सब्जेक्ट्स क्या हैं। जैसे अभी आपके 7th शेड्यूल में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर सम डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन, one is union government, other is state government, then third is concurrent list.
ऐसे ही उस समय क्या था, पहले सब कुछ वॉज अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स. What this 1919 Montague Chelmsford reform did was division of subjects between reserved, which was kept with the British administration itself, and other was transferred, given to Indian administrators, legislators. तो ये फर्क था इसमें, डायरकी लेके आई थी चीज़ 1919 में. अब 1935 एक्ट भी आएगा आगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट. इसने क्या किया, जिस डायरकी, अब देखो एक और इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन बनता है, राइट विद डिफरेंट पेन. दिस 1990 एक्ट डायरकी वाज एट यूनियन लेवल. 1935 में व्हाट इट वाज, डायरकी एक सेकेंड यार, दिस वाज एट स्टेट लेवल. ठीक है, डायरकी वाज एट द स्टेट लेवल इन 1919 एक्ट. 1935 में क्या होता है, डायरकी एट यूनियन लेवल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स, पूरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स एट स्टेट लेवल. तो मतलब स्टेट लेवल पे तो आपकी गवर्नमेंट पूरा सभी पार्ट्स दे दी गई, ठीक है, स्टेट लेवल पे, और यूनियन लेवल पे हम लेके आगे डायरकी. तो ये फ़र्क रखना है याद. 20 में आपकी 1920 में एक इम्पोर्टेंट होती है आपकी कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेड बाय गांधी, एंड्स विद चोरी चौरा इंसिडेंट. पढ़ेंगे हम अभी उसमें आपके नॉन कोऑपरेशन में. 1921 में, या ये पढ़ने की वैसे इसमें ज़रूरत तो नहीं है, तो इसमें एक बार देख लीजिए बस आप क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है. 1920 से 22 तक आपकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलती है. what it does is it boycotts the council, schools, clothes, and after the end of it ends with Chori Chora incident. Now Chori Chora incident was nothing but an incident whereby some group of people torched, या उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था. So when Gandhi saw that movement is turning violent, so he called off this movement at this very juncture, which is called Chori Chora incident. इसी दौरान 1921 में एक मोपलर रेबिलियन होता है. इट वॉज इनिशियली अगेंस्ट ब्रिटिश, बट इट गेन्ड सम कम्युनल कलर्स एंड वॉज देन फॉट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स. 1921-22 वॉज इक्का मूवमेंट. ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसी की नॉन कोऑपरेशन के अंडर ही आती है. स्वराज पार्टी 1923 में बनती है. स्वराज पार्टी वॉज हेडेड बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू. इट वॉज अ पार्ट विद इन कांग्रेस. 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी होती है बाय HRA, विच लेटर चेंज इट्स नेम टू HSRA. और इसमें ये बंदे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में हम देखेंगे नहीं, ठीक है, तो आप उस समय तक थोड़ा बस बेसिक आइडिया रही. तो 1920 में 1920s इज द टाइम ऑफ वेरी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फेवर या फर्वर ऑफ द मूवमेंट्स. इस समय आपकी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स दोबारा से स्टार्ट होती है. उनसे जैसे 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनती है आपकी. इसी दौरान आपकी सूर्य सेन इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी बनते हैं. इसी टाइम आपके सॉन्डर्स पे असैसिनेट किया जाता है भगत सिंह वगैरह से. तो ये चीज़ें इस समय ही होती हैं आपकी. साइमन कमीशन 1927, साइमन गो बैक 1927 में. इसी के रिस्पॉन्स में 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है. अब साइमन कमीशन क्या था, अभी तक सारी चीज़ें क्या हो रही थी कि अभी तक what was happening was till now British felt Indians don't have enough acumen to establish their own set of rules to administer themselves. मतलब कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे, इसलिए एक साइमन कमीशन बनाया. साइमन कमीशन क्या था कि अब कैसे कैसे रूल्स होने चाहिए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वगैरह 1919 बना, क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ऐसे एक नया रिफॉर्म एक्ट ले गए. Indians wanted to be represented into that act, Simon Commission, but what British did was it didn't even allow one single member of Indian origin into this Simon Commission.
This led to a protest and this culminated into डेथ ऑफ लाजपत राय। और इसी को चैलेंज करने के लिए, जैसे उन्होंने कहा था कि इंडियंस आर नॉट केपेबल टू मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, 1928 नेहरू रिपोर्ट कम्स इन। नेहरू रिपोर्ट आस्क्स डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है कि हम रहेंगे ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ही, मगर हमें खुद को रूल करने का पावर हमारे पास खुद के पास होनी चाहिए। सो दिस इज डोमिनियन स्टेटस। सॉन्डर्स असैसिनेशन बाय भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, 1929 इंपॉर्टेंट। अब क्या हुआ था, ये जो नेहरू रिपोर्ट थी इसमें कट ऑफ डेट दे दी गई थी कि जब तक आप नेहरू रिपोर्ट मान लो इस तारीख तक, अगर आपने रिपोर्ट नहीं मानते तो इंडिया विल लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जब ये नहीं होती तो 1929 में वी डिक्लेयर पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज डे होता है, विच इज 26 जनवरी 1930। एंड इन 1930 सिविल डिसोबीडियंस बिगिंस विद डांडी मार्च। और ये आप क्या चाहे सर बॉम्ब इन, ये हमें पता ही है, ठीक है, असैसिनेशन होती है इस समय। दे वेंट इनटू हाइडिंग आफ्टर दिस और दे केम रीसर्फेस्ड अगेन ड्यूरिंग दिस बॉम्बिंग ऑफ सेंट्रल असेंबली। 1931 अब डांडी मार्च वगैरह होते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होती है इस समय टू जस्ट टू पैसिफाई इंडियंस एंड टू ब्रिंग देम बैक टू द टेबल। देयर इज गांधी इरविन पैक्ट, एंड गांधी इरविन पैक्ट में एक डिमांड क्या होती है, कई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आर नथिंग, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होती है, these were done to chart out a form of station and गवर्नमेंट फॉर इंडिया। तो मान लीजिए पहली 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, 1 2 3 कांग्रेस अदर्स। पहले में कांग्रेस गई नहीं, ठीक है। दूसरी में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। एंड वन ऑफ द की फैक्ट सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस में था कि गांधी इरविन पैक्ट में था कि कांग्रेस विल पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो इन सेकंड कांग्रेस वाज प्रेजेंट, इन थर्ड इट वाजंट प्रेजेंट अगेन। पूना पैक्ट, अब क्या हुआ कि इसमें काफ़ी बातें आने लगी इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। देयर इमर्ज्ड रिफॉर्म कॉल्ड जस्ट क्या था पूना, अच्छा एक सेकंड, कम्युनल अवार्ड हुआ इस समय। तो व्हाट कम्युनल अवार्ड वाज कि डन बाय रैमजे मैकडोनाल्ड, उस टाइम ब्रिटिश वो थे प्राइम मिनिस्टर। व्हाट ही डिड वाज, रैमजे मैकडोनाल्ड व्हाट ही डिड वाज ही अनाउंस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। जैसे मुस्लिम्स के लिए 1909 में आ गए थे, तो इन्होंने कम्युनल अवार्ड 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने ये कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट शेल बी फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस टू। अब ये क्या हुआ इससे, गांधी सेट ऑन अ फास्ट, ही बिलीव इफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या इफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स आर गिवन टू डिप्रेस्ड क्लासेस it will lead to their complete alienation from Hindu fold. And when he sat on hunger strike, Gandhi and Ambedkar came to a conclusion कि कोई एक चलो separate electorates नहीं होंगे, what can be done is instead of that some seats can be reserved for depressed classes both at union legislature and state legislature. और इसके बाद फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, कांग्रेस डिडंट पार्टिसिपेट। 30-34 जैसे मैंने आपको बताया यहीं
ये सूर्य सेन, ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन चिटागोंग आर्मी रेड, और इस समय 1934 में ही डिड इट। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, प्रोविंशियल ऑटोनमी, ये मैंने आपको बताया यहाँ। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल, दिस इज नथिंग बट प्रोविंशियल ऑटोनमी, प्रोविंशियल ऑटोनमी, ठीक है। अब कांग्रेस मिनिस्ट्री, दिस इज डन। अब 1935 एक्ट के बाद इलेक्शंस हुए स्टेट लेवल पे, तो इन स्टेट लेवल इलेक्शंस में कांग्रेस वाज एबल टू फॉर्म मिनिस्ट्रीज एट स्टेट लेवल इन व्हाट 11 आउट ऑफ 16 प्रोविंसेस, 16 में से 11 में कर पाई। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगिंस, साथ ही साथ मुस्लिम लीग ऑब्जर्व्स डिलीवरेंस डे ऑन द सेम डे व्हेन कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइंस। अभी कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन क्यों करती है? जब वर्ल्ड वॉर 2 में स्टार्ट होता है तो ब्रिटिश विदाउट इवन कंसल्टिंग विद इंडियन गवर्नमेंट, दैट इज इंडियन मिनिस्टर्स, इंडियन पीपल, इंडियन लीडरशिप, इट सेज इंडिया इज अ पार्ट ऑफ, India shall join World War II on the side of Britain. This led to resignation of Congress ministries. On the very day of resignation of Congress ministries, Muslim League declared Deliverance Day. 1940 Lahore Resolution, Pakistan demands, Pakistan is demanded for the first time. In the similar year, individual satyagraha is done, और विनोबा भावे was the first individual satyagrahi. अब ये क्या था बताता हूँ आपको। अब देखिए, वाइल इंडिया डिडंट वांट एनी वॉर और डिडंट वांट इंडिया टू पार्टिसिपेट इन एनी वॉर, बट स्टिल इंडिया फेल्ट ब्रिटिश स्टिल वाज अ डेमोक्रेटिक नेशन एंड इट वाज बेटर देन एनी फासिस्ट regime that was Germany or Italy or Japan. So India wanted to support Britain but couldn't support Britain also because if they supported it, it meant they were supporting the war. इस समय क्या करते हैं फिर गांधी जी? ही ब्रिंग्स आउट दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंडिविजुअल सत्याग्रह, कि हर एक आदमी खुद अलग अलग करेगा सत्याग्रह। सो फर्स्ट सत्याग्रही वॉज विनोबा भावे। इवेंट्स में सत्याग्रह क्या करेगा? डीसी के ऑफिस के सामने बैठ जाएगा, झंडा आराम से फहराएगा, अपना कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में लगेगा। सो विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही एंड सेकेंड वॉज नेहरू, सेकेंड सत्याग्रही नेहरू। Hmm. 1942 Quit India movement starts. Do and die given at Gowalkar. Do and die given at Gowalkar Tank Stadium, Mumbai. अच्छा, 1943 बंगाल फैमिन होता है, इंडियन नेशनल आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन अंडर सुभाष बोस, दिल्ली चलो चलता है। उसके बाद जो इसमें कैप्चर हो जाते हैं लोग, उनकी आईएनए ट्रायल्स होती हैं। आईएनए ट्रायल्स में 3 इंपॉर्टेंट बंदे होते हैं आपके, सहगल, ठीक है, याद रखने हमने सहगल, एक सेकेंड, ये 3 इंपॉर्टेंट थे पीपल आर आईएनए ट्रायल्स। ऑफिसर्स हैं, हाँ, शाह नवाज खान, सहगल, ठीक है, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, ये 3 अलग अलग बंदे थे, इनके ट्रायल होती है, तो ये याद रखनी है मैंने। इसके बाद ट्रायल्स के बाद रॉयल इंडियन म्यूटिनी भी होती आ रही है। 46 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, और 1947 में सब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी इसकी आपकी इसी दौरान बनती है 46 के बाद। और 47 में इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इज डन, एंड 15 अगस्त 1947 इंडिया इमर्जेस एज अ सेपरेट नेशन। तो ये आपका मोर और लेस ऊपर से हम देखें तो पूरी टाइमलाइन है, तो ये हमें याद रखनी है। ये पूरे बेस बनाएगी आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, और कल हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। सो थैंक यू।